Good morning, student. Today's chapter is chapter number 4, The Rat Trap by Selma Lagerlöf. She was a Swedish writer, and a universal theme runs along all of her compositions. The basic theme of this chapter is that essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. Basically, this story is set in the mines of the Sweden, and the story is told somewhat in the manner of a fairy tale. Okay, so let's start. We will do line to line explanation. I will explain you each line and each word of your chapter. So it's good if you people open your books with this video and note down the word meanings so that each and every word is clear to you. So open your books with this video, note down the meaning and try to understand the chapter. So this is the first paragraph. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Okay, so let's see these lines first. This story is a story of a man who sells the rat traps, and he made that rat traps himself. The material which he used for making these rat traps he got by begging them. ठीक है, तो जो मटेरियल जितना भी था उसे भी वो बैगिंग से ही लेता था, आसपास से लोगों से मांग के, या मान लो आसपास कुछ ऐसे उसे मिल जाए मटेरियल वहीं से वो लेता था। और ये जो बिज़नेस था वो कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। ठीक है, रेड ट्रैप उसने पहले मटेरियल इकट्ठा करेगा, फिर बनाएगा, फिर उसे बेचेगा। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी। ठीक है, तो वो बैगरी तो करता ही था, साथ में थीवरी छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है, ये जो बॉडी एंड सोल टुगेदर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, ये अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो बैगिंग और थीवरी दोनों करता था। ठीक है, सो इवन हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. Now here is a description of his physical description of our character, that he was always in the rags. Rags होते हैं हमारे फटे पुराने कपड़े। His cheeks were sunken. Sunken word का मतलब है अंदर धसी हुई। And hunger gleamed in his eyes. ठीक है, gleamed का मतलब होता है चमकना। तो जो hunger थी या जो भूख थी वो उसकी आंखों में दिखती थी, चमकती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road. कुछ वर्ड्स देखेंगे यहाँ पे। monotonous वर्ड का मतलब होता है tediously repetitious। कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार एक ही तरह की चीज़ हो, सेम चीज़ हो, उसे वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं monotonous। vagabond का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, जो होमलेस हो, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है vagabond। तो ये जो हमारा करेक्टर था वो एक वेगाबॉन्ड ही था, क्योंकि वो इधर से उधर घूमता रहता था और वो होमलेस था। ठीक है, हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड। प्लॉड्स का मतलब होता है बहुत ही थकावट से या थके हुए, टायर्ड होकर चलना, डेट इज़ द प्लॉडिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड into his own meditations. मेडिटेशन वर्ड का मतलब यहाँ पे है कि वो अपनी ही सोच में रहता था। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining, and he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. ठीक है, तो वो एक वैगाबॉन्ड था, वो यहाँ से वहाँ घूमता था, रैट ट्रैप्स को बेचता था। तो जब वो एक दिन जा रहा था उसके माइंड में एक आइडिया आता है, एक थॉट आता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो जो दुनिया है, इसकी सारी लैंड, सिटीज़, विलेजेस, वो कुछ नहीं है, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। ठीक है, अभी देखेंगे उसने ये बात क्यों बोली। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल।
It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it in on him, and then everything came to an end. So why he compared this world with the rat trap? तो वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे जो रैट ट्रैप है, ठीक है, वो जो रैट को पकड़ने के लिए जो हम ट्रैप यूज़ करते हैं तो उसमें हम बेट लगाते हैं पहले, ठीक है, बेट होता है, कोई भी चीज़ हम लगाएंगे उसको खाने के लिए, या चारा बोल सकते हैं आप, ठीक है, वो लगाते हैं तो उस चारे की तरफ टेम्प्टेड होके जो रैट है वो रैट ट्रैप की तरफ आएगा, ठीक है, और जैसे ही वो उसमें आता है अपनी टेम्पटेशन की वजह से, अपने लालच की वजह से, तो वो उसमें फंस जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा करैक्टर है, जो पैडलर है, ये पूरी दुनिया को उस रैट ट्रैप के साथ कंपेयर कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई ऐसी टेम्पटेशंस होती हैं, कोई ना कोई ऐसे जॉयज़, रिचेज़, शेल्टर, फूड जो हमें टेम्प्ट करती हैं, टेम्पटेशंस हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और हम इसी तरह से अपने टेम्पटेशंस को पूरा करने के लिए और आगे और मेहनत करते हैं, फिर कोई और डिज़ायर आ जाती है, फिर और करते हैं, और इसी तरह से इस जाल में फंसते जाते हैं और फिर हम कभी भी निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, ठीक है। तो वो बहुत खुश हो रहा है, इसी तरह की बातें सोची जा रहा है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड था, जो दुनिया थी, उसने ज़्यादा कुछ उसे दिया नहीं था कभी इसके बारे में, तो ये सोच सोच के खुद ही सोच से खुश हो रहा है। जैसे वो थॉट जो है वो जॉय दे रहा है कि जो पूरी दुनिया है वो रैट ट्रैप में फंसी हुई है। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम, ये उसके लिए एक चेरिस्ड, एक खुशी देने वाला पास टाइम बन चुका था। और ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ अ पीपल ही न्यू and who had let to think of the people who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait, ठीक है। तो वहाँ पे वो घूम रहा है, अपने रेड ट्रैप्स बेचने के लिए गया है जर्नी पर, और साथ साथ में जो है वो लोगों के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो उसे जॉय, उसे एक नेचुरल खुशी दे रहा है ये सोच के, तो वो सोच रहा है दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में। डैट ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी, ड्रेरी वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा जॉयफुल ना हो, अनहैप्पी, ठीक है। प्लॉडिंग्स का मतलब वही प्लॉड वर्ड से बनाया है यहाँ पे, प्लॉडिंग वर्ड का मतलब है वही जो बहुत, जो उसका चलना है, उसकी चाल के लिए वर्ड यूज़ किया गया है प्लॉडिंग्स, ठीक है। तो वो चलता जा रहा है और इस सोच के बारे में सोची जा रहा है, लोगों के बारे में सोची जा रहा है कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस जाल में फंस चुके हैं, ठीक है। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage, ठीक है, क्योंकि वो एक होमलेस पर्सन था, उसके पास अपना घर नहीं था, तो वो जर्नी पे था। ट्रजिंग का मतलब होता है रोड के साथ में चलना। एंड उसे एक छोटा सा कॉटेज दिखाई देता है ग्रे कलर का, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, ठीक है। वो इसी तरह से अपना टाइम स्पेंड करता, अपनी नाइट इसी तरह से स्पेंड करता था वो, तो जहाँ उसको रात पड़ जाती थी वहीं वो शेल्टर देख के, लोगों से हेल्प मांग के वहीं पे रहता था, ठीक है। तो एक शेल्टर मिलता है उसे, नॉक करता है डोर पे, एंड was he refused? Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own, and finally got out an old pack of the cards and played majolies with his guests until bedtime. तो जब वो उस पर्सन को मिलता है और वो डोर पे नॉक करता है, तो एक अनयूजुअल सी चीज़ होती है जो कि उसके साथ आज तक नहीं हुई थी। जनरली जब भी वो लोगों से हेल्प मांगता था तो उसे कभी भी हैप्पी फेसेस नहीं दिखाई देते थे, ठीक है। जनरली लोग उसे रिफ्यूज़ करते थे, मना कर देते थे हेल्प के लिए, लेकिन उस दिन इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, सोर मतलब अनहैप्पी फेसेस, द ऑनर जिसने डोर खोला वो एक ओल्ड मैन था, ठीक है। उसके घर पे कोई नहीं था साथ में, एंड ही फील हैप्पी, उसने देखा कि कोई उसके घर पे आया है, तो देन ही फील हैप्पी, एंड ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, उसने उसके लिए खाने के लिए पॉरेज रेडी किया। गेव हिम सपर, सपर हम डिनर टाइम के लिए बोलते हैं। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, उसे टोबैको रोल भी दिया बेड टाइम तक, उसके साथ बातें की। ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स के साथ उसने मजॉलिस भी
खेला, ठीक है, मतलब उसे जितना वो एंटरटेन कर सकता था, जो जो उसके पास फैसिलिटीज़ थी उसने सारी उस ये जो हमारा पैडलर है, जो हमारा करेक्टर है, उसे प्रोवाइड की अंटिल बेड टाइम। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको। कॉन्फिडेंसेस का मतलब यहाँ पे है सीक्रेट्स, कि जो ओल्ड मैन था जिसके घर पे वो रह रहा था, वो जितनी जैसे वो उसने पॉरिज और टोबैको से सर्व किया था, उसी तरह से वो अपने सीक्रेट्स भी उसको बता रहा था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामसो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। उसने उसे बताया कि वो पहले एक आयरन मिल में काम करता था, ठीक है, रामसो आयरन वर्क्स में काम करता था, जहाँ पे वो एक क्रॉफ्टर की डेजिग्नेशन पे था। एंड नाउ डैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, सो इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। ठीक है, तो अब उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी ड्यू टू हिज एज, और अब उसके पास एक काउ थी जिसके साथ वो अपनी डेली नीड्स को पूरा करता था। ठीक है, सो yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day and last month he had received all of 30 kroners in the payment. ठीक है, वो जो क्रॉफ्टर था जिस पर्सन ने इसे शेल्टर दिया था, वो अपनी सारी जो सीक्रेट्स है उसे बता देता है कि उसने कितनी सेविंग्स की है, जो काऊ है वो कैसे उसका जो मिल्क है उसे वो क्रेमरी हम बोलते हैं एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को, जहाँ पे वो अपना उसका दूध बेचता है और उसे फिर 30 क्रोनर जो है वो स्वीडन की करेंसी है। ठीक है, तो उसने ये भी बता दिया उसे कितनी पेमेंट मिलती है और वो रखता कहाँ है वो भी बता देता है। ठीक है, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, लुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of guests, nodding knowingly. ठीक है, अब देखेंगे इन लाइंस को ध्यान से। जो ये क्योंकि क्रॉफ्टर के लिए वो जो पर्सन था वो एक स्ट्रेंजर ही था। ठीक है, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। जो स्ट्रेंजर था, वो जो हमारा करेक्टर था, ठीक है, जो कि वहाँ पे हेल्प लेने आया था, वो थोड़ा सा इनक्रेडुलस लगा। इनक्रेडुलस हम उस पर्सन को बोलते हैं जिसके जो अनबिलीवेबल, जब आप किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हो, अनबिलीवेबल जो आपके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन आते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड इनक्रेडुलस। ठीक है, तो जब उसने देखा कि ये जो पर्सन है, जो क्रॉफ्टर है, ये अपनी सेविंग्स भी मेरे साथ शेयर कर रहा है और मुझे ये भी बता रहा है कि वो सेविंग्स रखता कहाँ है, तो उसके फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन आया था वो बहुत ही इनक्रेडुलस एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, तो उसने बताया उसे वो लेदर पाउच नेल से उठाया, ठीक है, और उसे वो 3 नोट भी दिखाए, 10 के जो नोट थे वो भी दिखाया उसे। ठीक है, तो ये जो गेस्ट था उसके घर पे आया हुआ, उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि ये पर्सन किस तरह से अपनी सारी सेविंग्स मुझे दिखा रहा है। ठीक है, चलो इस तरह से फिर मॉर्निंग हो जाती है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन मतलब इन गुड मूड। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन द बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। ठीक है, तो वो जो क्रॉफ्टर है वो चला जाता है अपने काम के लिए, अपने काऊ के मिल्क वगैरह लेने के लिए, और ये जो हमारा स्ट्रेंजर था वो भी उठ जाता है। एंड दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। ठीक है, क्रॉफ्टर जो है वो अपने डोर को लॉक कर देता है, जो की है वो अपने साथ पॉकेट में डाल ले जाता है, और जो मैन है, द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ऑन वे। ठीक है, क्रॉफ्टर चला गया अपना काम करने के लिए, और रेड ट्रैप जो ये रेड ट्रैप बेचने वाला जो पैडलर था वो भी अपने रास्ते हो जाता है। ठीक है, लेकिन बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। वो वापस आ जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो विंडो की तरफ से जाता है और विंडो का पैन जो है, जो शीशा है, उसे स्मैश करता है, उसे तोड़ता है, और स्टक इन हिज हैंड, अपने हैंड को टूटे हुए शीशे से अंदर ले जाते हुए गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। ठीक है, उस पाउच जिसमें 30 क्रोनर थे, उस पाउच की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वहाँ से मनी को चोरी करके टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन हिज ऑन पॉकेट, अपनी पॉकेट में डाल के। दस ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। ठीक है, क्योंकि अब उसे सारा पता था कि कहाँ चीज़ रखी है, तो सेम उसी प्लेस से वो लेदर पाउच से पैसे लेता है और वापस फिर पाउच को वहीं पे रख के वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो वही क्रॉफ्टर जिसने मुझे इतने अच्छे से हैंडल किया, उसे सब कुछ ऑफ़र किया, उसकी जो सेविंग्स है उनको चोरी कर लेता है। ठीक है,
As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब वो वहाँ से गया तो उसे काफ़ी लग रहा था कि वो कितना स्मार्टनेस से उसने अपनी खुश हो रहा था कि उसे इतने इजीली 30 करोनर्स मिल गए, क्योंकि वो तो कितनी मेहनत करता फिर भी उसके रेड ट्रैप्स नहीं बिकते थे. He realized of course that at first he dared not continue on his public highway but must turn off the road into the woods. ठीक है, तो वो सोचता है कि उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए बल्कि उसे फॉरेस्ट एरिया चुनना चाहिए ताकि जो पुलिस है वो उसे पकड़ ना पाए. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट हार्स दिस कॉज हिम नो डिफ़िकल्टी. ठीक है, वो चलता रहा, उसने फॉरेस्ट वाला रास्ता पकड़ लिया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई. बट लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू. He tried to be sure to walk in a definite direction but the paths twisted back and forth so strangely. ठीक है, तो वो जो फॉरेस्ट है उसमें वो इस तरह से उलझ जाता है कि वो बार बार एक ही जगह पे वापस आ रहा था, उसे जो रास्ता है वो समझ में नहीं आ रहा था. He walked and walked without coming to the end of the wood and finally realized that he had only been walking around in the same part of the forest. ठीक है, बहुत जल्दी उसे ये समझ में भी आ गया कि वो फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में बार बार घूम रहा है. ठीक है, all at once he recalled around in the same part of the forest his thoughts about the world and the rat trap. अब वो उसे वही थॉट अपने याद आने लगे जो वो कह रहा था कि जो सारी दुनिया है वो एक रेड ट्रैप की तरह है और सारे रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं. तो उसे भी ऐसे लगने लग गया था कि नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम. उसकी अब खुद की टर्न आ गई थी. ठीक है, कि उसने पहले टेम्प्टेड हुआ, वो अट्रैक्ट हुआ 30 करोनर्स की तरफ, फिर उसने चोरी की, सिन किया. ठीक है, अब वो चोरी करने के बाद उसे ऐसे लग रहा था कि वो फंस चुका है, क्योंकि ना वो हाईवे का रास्ता पे जा सकता था और ना ही वो फॉरेस्ट में उसे रास्ता मिल नहीं रहा था. ठीक है, सो ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट. तो उसे ऐसे लग रहा था कि वो फूल बन चुका है और जो बेट था उसकी तरफ, मतलब वो जो 30 करोनर थे वो एक तरह से चारा, उसको अट्रैक्शन की वजह से वो फंस गया है. And the whole forest with its trunk and branches and its thicket and fallen logs closed it upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ठीक है, तो जब वो फॉरेस्ट की तरफ देख रहा था तो फॉरेस्ट में वो इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट था. थिकेट का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स वेजिटेशन जहाँ पे हो उसे हम थिकेट्स कहते हैं. ठीक है, तो वो जो उसे एक इम्पेनेट्रेबल प्रिजन की तरह वो लगने लग गया था. ठीक है, इम्पेनेट्रेबल प्रिजन एक ऐसी जेल की तरफ से लगने लग गया जहाँ से वो शायद कभी अब नहीं निकल सकता था. ओके, ये है हमारा थिकेट. ठीक है, जो वर्ड थिकेट यहाँ पे आया है, थिकेट होता है इस तरह का एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हो. ओके, सो इट वाज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट एंड दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिसअपियर. ठीक है, क्योंकि दिसंबर का मंथ था तो डार्कनेस जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका ग्लूम, डिस्पेयर मतलब होता है होपलेस होना, ग्लूम मतलब होता है दुखी हो जाना, तो वो और ज़्यादा दुखी और उदास होने लग गया. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. उसे लगा कि अब उसे कोई रास्ता नहीं मिल सकता है और वो ग्राउंड में नीचे बैठ गया. ओके, बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ रेगुलर थम्पिंग. देयर वॉज नो डाउट as to what that was. He raised himself. Those are the hammered strokes from an iron mill, he thought, and there must be people nearby, and he summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. ठीक है, तो जैसे ही वो अपनी पूरी एनर्जी लूज़ करके नीचे बैठा तो उसे एकदम से आवाज़ सुनाई देती है हैमर की, जो कि आई थी रामसो मिल से. उसे पता था कि यहाँ पे आसपास कोई मिल है, तो उसी साउंड की तरफ वो चलना शुरू हो गया. हिज समंड का मतलब होता है जाना. ठीक है, उसने अपनी सारी जो स्ट्रेंथ है उसे समंड, उसे इकट्ठा किया एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. उस साउंड की तरफ वो चलना शुरू हो गया. द रामसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज. In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led into a large inland lake, and in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. ये यहाँ पे देखें कुछ जो वोकेबलरी है, मेनली ये आयरन मिल से रिलेटेड ज़्यादा वोकेबलरी है. तो यहाँ देखते हैं कुछ पिक्चर्स देखते हैं कुछ और समझने की कोशिश करते हैं. सो रामसो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब क्लोज हो चुकी है, लेकिन उस वक्त एक काफ़ी बड़ा लार्ज प्लांट था जहाँ पे स्मेल्टर भी था, रोलिंग मिल भी थी और फॉर्ज भी था. तो स्मेल्टर जो है उसे देखते हैं पहले क्या होता है.
स्मेल्टर होते हैं बड़ी बड़ी फर्नेसेस, ठीक है। रोलिंग पिन होती है, इस पिक्चर को हम रोलिंग पिन बोलेंगे, जिसमें आयरन को गर्म करके फिर रोल बना दिए जाते हैं, ठीक है जी। और फॉर्ज जो है ये फॉर्ज है, ठीक है। फॉर्ज भट्टी बोलेंगे इसे, मिल के अंदर जो होती है। और ये वो स्टोन होता है जिससे हम जो हमारा प्रोडक्ट है आयरन मेनली निकलता है, इन भट्टियों में डाल के इसे इस तरह से रोलिंग पिन में डाल के रोल्स बनाए जाते हैं इसके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ इन द समर टाइम में वहाँ पे हैविली लोडेड बार्जेस एंड स्कॉज आती थी। अब बार्जेस और स्कॉज क्या हैं? ये होती हैं बार्जेस, ठीक है, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो लाई जाता था थ्रू द बार्जेस एंड स्कॉज। तो ये एक तरह की शिप्स हैं, ठीक है। इनमें हैविली लोडेड मटेरियल आता था थ्रू द कैनाल विच लेड इनटू अ लार्ज इनलैंड लेक। एंड इन द विंटर टाइम जो रोड्स होते थे वो सारे कोल डस्ट के साथ ब्लैक हो रखे होते थे, क्योंकि वो एक आयरन मिल थी, तो वहाँ से जो डस्ट थी कोल की वो शिफ्ट होता है छन के, ठीक है। तो वो शिफ्ट हो के जो पूरा जो एरिया था, जो रोड्स थे वो ब्लैक हो रखे होते थे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on an anvil, and every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration through, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden sheets, ठीक है। तो ये जो सीन है अभी ये आयरन मिल के अंदर का सीन है, जिसमें एक इवनिंग की बात की गई है, क्योंकि वो भी वहाँ पे पहुँचने वाला पहुँच चुका था जो पैडलर था। तो उसने क्या देखा वहाँ पे कि वहाँ पे एक मास्टर स्मिथ है, साथ में उसका एक हेल्पर बैठा है, ठीक है। उस फॉर्ज के पास बैठे हैं, फर्नेस के पास, वहाँ पे पिग आयरन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। पिग आयरन कौन सा होता है? पिग आयरन है दिस वन, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल है, इस पिग आयरन को डालेंगे और इससे फिर वो इसे मेल्ट करते हैं, ठीक है। और ये एनविल है जिसे वो शीट्स में कन्वर्ट करते हैं हैमर की हेल्प से। दिस इज़ द एनविल, ठीक है। विच हैव बीन पुट इनटू फायर टू बी रेडी ऑन द एनविल में लगा के उसे रेडी करते थे। और एवरी नाउ एंड देन, मतलब बार बार जो है वो दोनों अपनी बारी बारी आते हैं और उसमें लॉन्ग आयरन बार है रिटर्निंग इन अ फ्यू उसमें आयरन को डाल रहे हैं, फिर उसे शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ ही देर में जो दोनों हेल्पर और जो आयरन स्मिथ है वो दोनों ड्रिपिंग विद प्रेस्पिरेशन, मतलब इतनी ज़्यादा हीट है, हालांकि विंटर का सीज़न है, लेकिन इतनी ज़्यादा हीट होने की वजह से वो एकदम से स्वेट, उनकी बॉडी पूरी प्रेस्पिरेशन हो जाती है, ठीक है। एंड दे वोर नथिंग, क्योंकि वो हीट के पास काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं डाला है, बस एक लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, ठीक है। तो ये सीन था जो मिल के अंदर का सीन था, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे। ऑल ऑफ देम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, ठीक है। फॉर्ज जैसे मैंने आपको बोला कि भट्टी को बोल सकते हैं हम, तो वहाँ पे बहुत सारे साउंड्स थी। द बिग बैलोज ग्रॉन्ड, बैलोज हम बोलेंगे, ये जो बड़े बड़े पिग आयरन है उसके लिए बोलेंगे बिग बैलोज ग्रॉन्ड। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ द क्लैटर, ठीक है। शॉवल्ड का मतलब होता है अंदर डालना, मॉ का मतलब है माउथ ऑफ दी फर्नेस, जो भट्टी का मुंह है उसमें जो पिग आयरन है, जो आयरन है उसको डाला जा रहा है, ठीक है। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, मतलब आवाज़ आती है उसको डालते वक्त। एंड आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, ठीक है। तो ये अंदर की आवाज़ें हैं जो बताई है, और बाहर जो है वो साथ में एक वाटरफॉल है उसकी आवाज़ आ रही है, और साथ में रेन की जो है वो अपनी अलग एक साउंड है, ठीक है। चलिए हम सेकंड पार्ट करेंगे अभी सेकंड वीडियो में।